Morning everybody, I am Colonel Puneet Sehgal. Today I would like to exchange certain ideas for doing well in an interview while you go for SSB. As my friends have been telling me that, sir, please also speak in Hindi. So today I will have a mix of Hindi and English so that our friends, those who cannot understand English properly, they are also able to understand. So friends, when you are going to SSB, one of the tests that you have to undergo is interview. And everybody goes under stress, becomes nervous, घबराने लग जाते हैं, डर होता है इंटरव्यू में, क्योंकि 1-to-1 है ना, कि पता नहीं क्या पूछ लेंगे. सो और आमने सामने एकदम रंग उड़ जाता है, मुंह लाल हो जाता है, कान लाल हो जाते हैं. व्हाई ऑल दिस? इन सब चीजों को देखते हुए हमें ये भी कंफ्यूजन रहता है, हम करें तो क्या करें, कितना कुछ करना है तैयारी, कम्युनिकेशन स्किल भी तैयार करना है, जनरल अवेयरनेस भी तैयार करना है, पता नहीं क्या क्या तैयार करना है. ये कंफ्यूजन इज ऑलवेज देयर इन आवर माइंड. Now, in just shortest possible time, I will try to give you some ideas as to what is interviewing officer looking for. कि एक interviewing officer आपके अंदर क्या देख रहा है, वो आपकी interviewing officer की expectation आप लोगों से क्या है. So दो ना उनको, what they expect, give it to them. And I can assure you, preparing for that is not difficult. Only what is required is persistent practice, and your commitment that you are going to improve every day. Every day there has to be some improvement in the aspects where you feel yourself to be wanting. Now, once you know what they are looking for, it becomes much easier to prepare your own self. So the first thing is appearance and bearing. Now, if I say appearance gives out 60% of a person's personality, appearance से एक इंसान की 60% पर्सनैलिटी के बारे में हमें पता चल जाता है. अब वो ऐसे कैसे बोल दिया? अब देख लीजिए आप, अगर आप नाराज हैं किसी से, शक्ल से दिखता है. आप खुश हैं, शक्ल से दिखता है. You love your mother, or you are going home after a long time, you meet your mother and you love her, the love can be seen from your expression. If you are angry, गुस्सा आ गया है, शक्ल पे दिखता है. If you are energetic like a child, enthusiasm, passion, सब कुछ शक्ल से दिखता है. तो अगर सारा कुछ अपीयरेंस में दिख रहा है and we are doing nothing, so appearance and bearing is the most important thing and one of the important factors. This factor also has a lot of weightage in first impression. जैसे हम पहली बार ही किसी को देख रहे हैं तो देखते ही बंदा पसंद आता है, तो वैसे ही जैसे ही आप इंटरव्यूइंग ऑफिसर के रूम में घुसते हैं, चल के जाते हैं, बैठते हैं, विश करते हैं, शेक हैंड करते हैं, ये 30 सेकंड के अंदर में फर्स्ट इंप्रेशन बन जाता है. और जब हमारी उम्र हो जाती है ना, सो एक्सपीरियंस हो जाता है. जो वहां एक्सपीरियंस एसेसर बैठे हुए हैं, इंटरव्यू ऑफिसर, वो अपने एक्सपीरियंस पे उनको इतना विश्वास होता है कि वो जो इंटरव्यू है वो उस डायरेक्शन में चैनलाइज कर देंगे जो वो समझ रहे हैं कि आप हो. और वो दिख कैसे रहा है? अपीयरेंस से. अपीयरेंस से आपके मैनर्स का पता चलता है, अपीयरेंस से आपके कंडक्ट का पता चलता है. अपीयरेंस में क्या क्या चीजें आ जाती हैं? हाउ यू ड्रेस अप, योर फेशियल एक्सप्रेशन, योर बॉडी पोस्चर, हाउ यू वॉक, हाउ यू स्टैंड, हाउ यू सिट. इनफैक्ट जब हमारे पास कोचिंग में आते हैं कई कैंडिडेट्स और स्टूडेंट्स जो हैं, उनको बैठना नहीं आता है, खड़े होना नहीं आता है ढंग से, उनको चलना नहीं आता है ढंग से. तो अगर ये सब चीजों में हमारी कमजोरी है तो हमें इसको दूर करना पड़ेगा. और या तो आप खुद मेहनत करके करिए या हमारे पास आइए, गाइडेंस लीजिए. आई अश्योर यू विल गो बैक एज अ डिफरेंट पर्सन. दैट मच गारंटी आई कैन गिव यू. द नंबर 2 थिंग दैट एन इंटरव्यूइंग ऑफिसर इज लुकिंग एट इज योर जनरल अवेयरनेस. अब अवेयरनेस अगर हम देखें तो
मोटा मोटा देखें, इफ यू लुक एट द ब्रॉड पर्सपेक्टिव, you should be aware of national affairs, international affairs, awareness of your subjects, and self-awareness. The self-awareness aspects is the most important thing, and this is where we lay stress in our training in DCG. Unless until you are self-aware, you can never develop your personality. The first step towards your personal development is self-awareness. Now, besides this, ये तो बड़ा बड़ा काम हो गया ना, छोटा काम बताता हूं, पहले वो तो कर लो, बड़े काम तो हम बाद में करेंगे। छोटा काम क्या है? You should have knowledge, you should know about your house, अपने घर के बारे में सब कुछ मालूम होना चाहिए, अपने नेबर्स के बारे में सब कुछ मालूम होना चाहिए, अपने शहर के बारे में सब कुछ मालूम होना चाहिए। आप किस शहर से हो, योर परमानेंट, उसकी हिस्ट्री, बैकग्राउंड, पॉपुलेशन, इंडस्ट्री, पीपल, फ्यूचर प्लान्स, डेवलपमेंट प्लान्स ऑफ दैट सिटी, अपनी सिटी के बारे में मालूम होना चाहिए, आपको अपने स्टेट के बारे में मालूम होना चाहिए, फिर आओ अपने देश पे और फिर जाओ विदेश पे। अगर ये नॉलेज आपकी है तो आप वहां जाके भी छक्के मार सकते हो इंटरव्यू में, ये मैं गारंटी देता हूं, क्योंकि ये नॉलेज होने से योर कॉन्फिडेंस, आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। जो इंटरव्यूइंग ऑफिसर कॉन्फिडेंस भी देख रहा है, तो जब नॉलेज होगी तो ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। जैसे मैंने बोला, जनरल अवेयरनेस एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो इंटरव्यूइंग ऑफिसर आपके अंदर देख रहा है। अब वो उसको कैसे पता चलता है कि आपकी अवेयरनेस अच्छी है? आपकी आदतों से। कौन सी आदत से? योर रीडिंग हैबिट्स। Your reading habits will tell him that yes, this person's awareness has to be good. Anyone who is having reading as a hobby, automatically his awareness, his ideas, his imagination, his logical and analytical thinking has to be of a higher standard. Hence, you all must develop reading as a hobby and as a habit. सो रीडिंग हैबिट से पता चल जाएगा उसको कि इसकी जनरल अवेयरनेस अच्छी है। नेक्स्ट, योर परफॉर्मेंस इन एकेडमिक्स। नाउ इफ यू स्कोर गुड मार्क्स इन योर 10th 12th ग्रेजुएशन and you are doing well in your academics, naturally you will do well in your academics. When you will do well in your academics only if your awareness level is good. Then in the end comes your general knowledge. Now, how to develop this? Read newspapers, read magazines, listen to news, read books. Now, if you do this continuously over a long period of time, generally what happens? You all start preparing only after you have cleared your written exam. You can't prepare general knowledge and current events in just 10 days, 15 days or 20 days before SSB. This has to be over a period of few years. When I also went for my SSB, there were no internet, there was no mobile phone, there was no computers, and there was no television also in my house. So from where did I gather all these inputs that I cleared my SSB without coaching in first attempt? I used to listen to BBC News every day at 6 o'clock in the morning, and I did this in my entire graduation for 3 years. I was aware of all complete national and international affairs. We had only small transistor, वो भी बुश का ट्रांजिस्टर था, छोटा सा, और उसमें सुबह और रात को न्यूज सुनते थे, ऑल इंडिया रेडियो से न्यूज सुनते थे। कई बोलते हैं हमें इंग्लिश बोलनी नहीं आती है, तो कम से कम वो हिंदी की न्यूज सुनो, और फिर उसके बाद इंग्लिश की आती है 9 बजे ऑल इंडिया रेडियो की, वो सुनो, ऑटोमेटिकली आपको समझ आ जाएगा। हिंदी के बाद इंग्लिश की न्यूज सुनोगे, आपकी इंग्लिश की वोकैबुलरी बढ़ जाएगी। यू विल बी एबल टू नॉट ओनली गेन नॉलेज ऑफ the nation and the world, but you will also improve your communication skill. The best English is spoken, you will realize this, in DD, Doordarshan News and All India Radio. बाकी न्यूज चैनल में तो बहुत शोर शराब होता है, ड्रामेटाइज कर देते हैं, but in a stable manner, if a news is given, the best news to learn English is Doordarshan and All India Radio, because उसमें हिंदी में आती है पहले, फिर इंग्लिश में आती है। सो अगर ये आप रेगुलरली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सुनेंगे, इट वुड हेल्प यू
to improve your communication skills. Next, what interviewing officer is looking at is your communication skills. अब उसमें क्या देखते हैं? उसमें भी 4 चीजें आ जाती हैं कम्युनिकेशन स्किल्स में. हाउ कैन यू स्पीक? हाउ वेल कैन यू स्पीक? हाउ वेल कैन यू राइट? एंड हाउ वेल कैन यू लिसन? ऑल्सो योर बॉडी लैंग्वेज. Now these 4 things are going to affect your level of communication. Now again, हम सब देखते हैं कि रिटन एग्जाम पास हो जाएगा, उसके बाद में हम अंग्रेजी की तैयारी कर लेंगे. अगर आपकी 17 साल 16 साल की उम्र तक आपको अंग्रेजी बोलनी नहीं सीखी है आपने, तो वो 14-15 दिन में कहां से सीखोगे? DCGA एक ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको फ्री में कोचिंग के साथ इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल सिखा रहा है. और यहां आएंगे तो शर्तन आप अपना कम्युनिकेशन स्किल का लेवल बढ़ाते ही जाएंगे. बिकॉज हम जानते हैं कि अगर हम उन्हें कम्युनिकेशन स्किल नहीं देंगे तो सब ट्रेनिंग बेकार है, सब बेकार है. आप जो भी कर रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, इतना मेहनत करके आपने इतने अच्छे नंबर लिए 10th में 12th में, एनडीए का रिटन एग्जाम पास किया और बोल नहीं पा रहे हैं, लिख नहीं पा रहे हैं इंग्लिश. यू डोंट हैव गुड वोकैबुलरी. Everything is gone. You have to speak properly, write properly, listen, and body language. In fact, body language itself has got 4 different aspects that I will talk about that body language topics in a separate video. Also, I will give you a separate lecture on how to develop your good communication skills. देखो friends, अभी तक जो इंटरव्यू ऑफिसर आपको आपके अंदर इंटरव्यू के दौरान में देख रहा है, उसके बारे में मैंने बात की है, जिसमें मैंने आपको 3 एस्पेक्ट्स बताए हैं. अभी वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं अपने आप को इस वीडियो में यहां तक रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूं. जो इसका अगला भाग आएगा, इन सेकेंड पार्ट, I will explain other 3 to 4 aspects that interviewing officer is looking at and what you all need to do to improve those aspects. Thank you. Hope all of you have liked my video. Please do like and subscribe if you really like it. Otherwise, don't do it. Thank you.